Hello friends, this video is in continuation of my last video on India's on financial instrument. In last video we have discussed the practical, natural and conceptual difference between the liability and equity. Then we have gone for the instrument and financial instrument definition. Then we have gone for the fact that how the financial instrument is defined under the Ind AS. So these three topics we have covered in our last video. This video is the continuation of the last video. Its objective is to further strengthening the foundation which we have laid down in our last video for a logical integration of the Ind AS on financial instruments. So this video, taking it as continuation of the last video, we can take it as the objective is to logically integrate the Ind AS on the financial instrument. So moving towards definition of the financial instrument clear to us, and now we know the financial instrument have three components. One is the financial assets, another one is the financial liability, and last one is the equity. So financial assets, financial liability or financial equity, these are the component of the financial instrument as per the definition of the financial instrument given in the Ind AS 109. Now let's analyze the financial instrument further, and herein we will try, in this video we will try to look into the financial instrument and our logical approach to look into the financial instrument. So by Ind AS, we have approached the financial instrument and we have the components of the financial instrument as financial assets, liability and equity. So at this point of time, I will advise to view the financial instrument with two approach. One approach is financial instruments. One categorization is financial instruments on the basis of the rights and obligation as it is given in the Ind AS. Financial instruments on the right and the obligation, it can have the three components. It may be financial assets, financial liability, or equity. Okay, one thing more, when we are discussing this, so for the better understanding on the financial instrument, what you should do, you should imagine yourself as an entity, and financial instrument would be your assets or financial instrument would be your liability or equity as per the terms and agreement which you have signed with the contracting party. So your contract, your instrument will tell whether the financial instrument is your financial assets or the liability or the equity. So financial instrument on the basis of the rights and obligation, it may be the financial assets, liability or equity. On the basis of, if we will say, on the basis of the nature or the practically, on the basis of the instrument available in the market, on the basis of the nature, we can categorize financial instrument on the basis of the nature. What I am saying, we have only the two approaches. These two are not the kinds of the financial instrument. These two are the approach with which we are financial instrument is looking into. One approach is on the basis of the rights and obligation written in the instrument or in the contract. Another one is on the basis of the nature of the financial instrument available in the market. So on the basis of the nature, financial instrument can be categorized into two parts. One may be termed as the derivative instrument and another one may be termed as the non-derivative instrument. Non-derivative instrument can again be divided into the two parts. One may be termed as the plain instrument and another one may be termed as the embedded instrument. Again, I am repeating. Actually, this is the topic of the discussion for the day because this will enable us to understand the definition of financial assets, financial liability and equity. We have already discussed the definition of financial instrument, but now whatever the topic we are discussing, this topic will enable us to understand the inherent meaning of the financial assets, financial liability and equity. So for this purpose, we have the two approach of
two approach viewing the financial instrument. One approach is on the basis of the rights and obligation which is given in the instrument, that is the financial assets or financial liability or financial equity, and another is on the basis of the nature. Whenever talking about the nature means the instrument, nature wise instrument available in the market. And on the basis of the nature, we can categorize the instrument in two parts. One is the derivative instrument, another one is the non-derivative instrument. What is the difference between the derivative instrument and the non-derivative instrument? Derivative instrument, now we are going to discuss this. Derivative and non-derivative, and then we will discuss within the non-derivative, we have the two types of the instrument. One is the plain instrument, another one is the embedded instrument. What is the derivative? What is derivative and non-derivative instrument? On the basis of the nature, derivative, we will discuss how the derivative is being defined under Ind AS 109. We will discuss this thing, how the Ind AS is defined, how the Ind AS has defined the derivative. Ind AS has actually the three components. While the Ind AS is defining the derivatives, what Ind AS 109 say, derivative is a document, derivative is an instrument, value of which is changes with the change in the underlying assets. Second one, it is settled in the future. And third one is it requires either no investment, no initial cost, no investment, or very little initial cost or very little investment. These three features has been given for the derivative as per the Ind AS 109. Okay, we will discuss these three features also. But first we need to understand the derivative as a part of the market instrument. As a part of the market instrument. What is the derivative as a part of the market instrument? If you will talk to me, what I will say, any instrument in the market, we have the two groups of the people, two groups of the traders. There are two groups in the market. One group has always the view that the price in the future will go up, and another group of the view that price in the future will go down. We have the two groups, two views in the market. Market will go up or market will go down. We have the two types of the group. So if there are the two group, one group is thinking that market will go up and another group is thinking market will go down. So what is the role of the derivative in that? Derivative is basically in the market is an instrument, is a type of the contract in which parties are entered with an intention of settlement without the delivery of the goods or the services. I mean, very simple. Derivative is an instrument or is a contract in which parties of the contract have no intention to deliver the goods. They have the intention to settle. They have the intention for the settlement, but they don't have any intention for the settlement with the delivery of the goods. They don't have any intention to deliver. For example, we are taking for example, today I am thinking that the price of the gold will go up after 60 days in the market. There is someone who is thinking that price of the gold will go down in the market. Both of them, either me or the other party, both of them, we don't deal in the gold. But my approach is that the market will go up, market of gold will go up. Another have the approach that market of gold will go down after 60 days. So with these approach, two different person have the two different approach, exactly different approach, exactly opposite approach on a particular subject. So we both have made and we decided. What we decided, we made a contract. We said if the price of the gold after 60 days will be more than 50,000. Today the market price is 50,000. So what we have contracted, if the price of the gold after 60 days will be more than the 50,000, in that case
in that case you will give me the, because he is thinking the gold market of the gold will go down, so he will be interested for the market to go down. I will be interested in up of the market, upward movement of the market. So if after 60 days, if the price of the gold is actually becomes rupees 55,000, what I will do, I will go to my friend and I will say the market is up now, so you please provide me the gold at rupees 50,000, because we have decided this thing. So I will purchase. This means price has been decided, and he was thinking the price will go down. Price will go down. Hence, he was agreed on the present day, on the 0 day. This means today. Suppose he agreed to sell me the gold at rupees 50,000 after 60 days. And what actually happens? Eventually happens in the market. Market goes upward. Gold market goes upward, and the price becomes the 55,000. Now, what will happen? I will go, I will say, it's your 50,000, please take the 50,000, give me the gold, I will take the gold, I will sell the gold in the market, and I will book the profit of rupees 5,000. So since I will do this, so when I will go to the friend and I will say, this is your 50,000, because neither me nor my friend is engaged in the business of the gold. So my friend will say, okay, if I will deliver you the gold, then what you will do with the gold? I will say, okay, I will take the gold from you at rupees 50,000, I will go to the market and I will sell it at rupees 55,000. And by this way, I will make a profit of rupees 5,000. My friend said, listen, I don't deal in the gold, but the ultimate profit in this transaction is that you are going to earn the profit of rupees 5,000. So do one thing, you settle this transaction by taking profit of 5,000 from me. So I will take the 5,000 from him and I will settle the transaction. So this means what? This is the transaction, derivative transaction. Derivative is in any contract which has been entered between the two parties with an intention not to settle the transaction with the delivery of the goods or the services, delivery of the goods. So delivery will not be over there. Yes, settlement will be there in the derivative transaction. This is one thing. Second thing is that derivative contract will normally be of very short term. Derivative contract, non-derivative contract may be short term or long term depending upon the nature of the business. But derivative contract invariably will be of short term. Invariably it will be of short term. It will not be very long term contract. Second. Third is, it will be settled in future. It will be settled in future. It will be settled in future. So, I mean, it will be settled in future, and it will be settled in future. What I am saying again, it will be settled in future, not by way of delivery of the goods. In case it would have been delivered with an, it would have been, the contract would have been entered with an objective to deliver the goods, then मैं इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट करता ही क्यों सामने वाले से कि आफ्टर 60 days आई विल गिव यू द after 60 days, if the price of the gold will go up, then you are liable to deliver the gold. मतलब मैं अगर कंफर्म रहता कि नहीं मुझे गोल्ड लेना ही लेना है, तो मैं इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट करता ही नहीं. मैं तो सीधा सीधा क्या कॉन्ट्रैक्ट करता कि मैं सीधा सीधा गोल्ड परचेस करने का कॉन्ट्रैक्ट करता. अच्छा, यहाँ पे भी गोल्ड परचेस करने का कॉन्ट्रैक्ट है, बट गोल्ड परचेस करने का कॉन्ट्रैक्ट किसी दो ऐसे पर्सन के बीच में नहीं है जो कि गोल्ड में डील करता है. देयर इज समवन एल्स. वी बोथ, हम दोनों में से कोई भी गोल्ड में डील नहीं करते. जस्ट ऑन द स्पेकुलेशन ऑफ द मार्केट, ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेकुलेशन ऑफ द मार्केट, वी हैव द टू ग्रुप्स. दो लोगों के दो अलग अलग विचार थे, और उन दोनों विचारों से एक को फायदा होना था, एक को नुकसान होना था. और वो दोनों, क्योंकि दो अलग अलग लोगों के दो अलग अलग विचार थे, इसलिए वो दोनों लोग आपस में, उन दोनों लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया.
अच्छी बात है। एक और बात, डेरिवेटिव की कॉन्ट्रैक्ट एक और रीजन से हो सकती है, टू सेव द लॉसेस, टू सेव द लॉसेस, टू सेव द लॉसेस, फ्यूचर लॉसेस, टू सेव द फ्यूचर लॉसेस विच अराइजेस ड्यू टू द प्रेजेंट राइट और ऑब्लिगेशन। यानी कि प्रेजेंट में हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, उस प्रेजेंट में जो कॉन्ट्रैक्ट किया उससे जो एसेट्स या लायबिलिटी अराइज हुई, उस एसेट्स या लायबिलिटी में फर्दर कोई लॉस ना हो, उस एसेट्स या यानी कि एसेट्स की वैल्यू हमारी डिक्रीज ना हो जाए या लायबिलिटी की वैल्यू हमारी इंक्रीज ना हो जाए। उस एसेट्स या लायबिलिटी में आज जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, उस कॉन्ट्रैक्ट से जो एसेट्स या लायबिलिटी अराइज हुई है, उस एसेट्स या लायबिलिटी में, उस राइट्स या ऑब्लिगेशन में फर्दर कोई लॉस ना हो, इस लॉस को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, इस लॉस को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम डेरिवेटिव्स का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। डेरिवेटिव्स का कॉन्ट्रैक्ट इज टू सेव द लॉस फ्रॉम द फ्यूचर, दैट यू कैन ऑल्सो से दिस एज हेज। हेज अकाउंटिंग हमें अलग से करनी है, इसमें हम उसके ऊपर बात करेंगे, बट इट्स ए टाइप ऑफ द हेज ओनली। हम ये जो सारी बातें कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं कि जब एक्चुअली में हम इंड एएस ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उसके लिटरेचर को जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो उसके लिटरेचर में बीच बीच में ऐसे कई कॉन्सेप्ट आएंगे जिसके बारे में हमें पहले से क्लैरिटी होनी चाहिए। तो वो सारे टेक्निकल टर्म्स जो कि बीच बीच में आने वाले हैं इंड एएस के लिटरेचर में, हम उनके ऊपर बात कर रहे हैं। और हमारे बात करने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जब हम इंड एएस के लिटरेचर से गो थ्रू हो रहे हों तो उस समय में हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस बात को लेकर के कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि हमारा किसी एक पर्टिकुलर टेक्निकल वर्ड के ऊपर हमारी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वेग हो। सो दिस इज़ द डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव में हमने आपको क्या बात की, हम लोगों ने क्या बात की डेरिवेटिव में? डेरिवेटिव एक कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, प्रैक्टिकली मार्केट में डेरिवेटिव कोई भी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि इस इंटेंशन के साथ एंटर किया जाता है कि उसकी सेटलमेंट तो होगी फ्यूचर डेट पर, बट दैट सेटलमेंट विल बी विदाउट द डिलीवरी ऑफ गुड्स। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्ट्रैक्ट जो होती है मार्केट में प्योर और प्योर मार्केट स्पेकुलेशन के बेसिस पर होती है। प्योर और प्योर मार्केट स्पेकुलेशन का मतलब ये हुआ कि मार्केट में दो तरह के लोग हैं। एक लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट अपवर्ड जाएगा, एक लोग मार्केट में ये सोच रहे हैं कि मार्केट डाउनवर्ड जाएगा, और ये दोनों की अपनी अपनी स्पेकुलेशन है। ये दोनों की अपनी अपनी स्पेकुलेशन बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट है। क्योंकि दोनों से एक दूसरे से अपोजिट है तो इस केस में दो ऐसे लोग आपस में मिलते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और इस कॉन्ट्रैक्ट की जो सेटलमेंट होती है वो गुड्स की डिलीवरी के साथ नहीं होती है, इस कॉन्ट्रैक्ट की सेटलमेंट प्रॉफिट बुकिंग के साथ होती है। दूसरी बात, तीसरी बात, हमने ये बोला कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो होती है वो नॉर्मली इनवेरिएबली ये क्या होगा, शॉर्ट टर्म होगा। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इनवेरिएबली क्या होगा, शॉर्ट टर्म होगा। और चौथी बात जो हमने डिस्कस की, चौथी और इम्पॉर्टेंट बात जो हमने डिस्कस की कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हम इसलिए भी करते हैं, उसका एक रीज़न ये भी होता है कि हमने प्रेजेंट में किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अगर कोई राइट्स या ऑब्लिगेशन अपने ऊपर क्रिएट किया है तो उस राइट्स या ऑब्लिगेशन में हमें और लॉस ना हो फ्यूचर में, अपने लॉस को, अपने एसेट्स और लायबिलिटी को, प्रेजेंट के एसेट्स और लायबिलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम डेरिवेटिव में एंटर करते हैं कि हमें और कोई नुकसान ना हो डेरिवेटिव्स में। सो दिस इज़ द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है, ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को जिसमें ये सारे फीचर पाए जाएं। और इंड एस 109 क्या कहता है? इंड एस 109 भी अमूमन जब आप उसकी बातों का इनहेरेंट मीनिंग निकालेंगे तो यही है। उनकी बात में बेसिक बातें क्या थी? पहली बात ये थी कि इसका वैल्यू किसी न किसी अंडरलाइंग, यानी कि डेरिवेटिव जो इंस्ट्रूमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू चेंज होगी अंडरलाइंग एसेट्स के वैल्यू में चेंज होने से। ऑफ कोर्स चेंज होगी। अगर मान लीजिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में बिक रहा है, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया और उस कॉन्ट्रैक्ट को मैंने मार्केट प्लेस में दिया, सभी के लिए मैंने एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि आज मैं किसी को 50,000 में गोल्ड, आज से 60 दिन के बाद मैं किसी को 50,000 में गोल्ड दे दूंगा, आज से 60 दिन के बाद मैं किसी को भी 50,000 में गोल्ड दे दूंगा। ये मैंने एक पब्लिक एट लार्ज ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने अनाउंस किया। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट मैंने बनाया, पब्लिक एट लार्ज पर इंस्ट्रूमेंट बनाया, ये तो किसी के लिए भी बनाया है मैंने, मार्केट में कोई भी आकर के इसमें एंटर कर सकता है। तो जो भी उसको सब्सक्राइब करेगा, ही इज़ द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट।
तो अब जो इसकी वैल्यू यानी कि अब मान लो कि मैंने उसकी वैल्यू ये जो कॉन्ट्रैक्ट रखी है और मैंने ये बोला कि इस कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई मेरे साथ एंटर करना चाहते हैं तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट उन्हें 10 रुपये की करनी पड़ेगी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट उन्हें 10 रुपये की करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, मार्केट में जितने ज़्यादा लोग आएंगे, जितने ज़्यादा लोगों को लगेगा कि भाई मार्केट अपवार्ड जाएगी, आज से 60 दिनों के बाद मान लो कि मार्केट में जो प्रेजेंट हैं, मार्केट के जो प्रेजेंट पार्टिसिपेंट हैं उनमें से 80% पार्टिसिपेंट को ये लगता है कि नहीं मार्केट तो आगे जाने वाली है, मार्केट तो आगे जाने वाली है, अपवार्ड मूवमेंट होगी। तो जाहिर सी बात है कि मेरा जो ये कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बढ़ेगी। इसका प्राइस तो मैंने 10 रुपये रखा है, लेकिन लोग 15 रुपये दे करके भी इसको परचेस करने के लिए तैयार होंगे। क्यों? क्योंकि अंडरलाइंग एसेट्स जो है इस इंस्ट्रूमेंट का वो गोल्ड है, और गोल्ड के प्रति लोगों का सेंटिमेंट ये है कि ये 60 दिन के बाद इसकी प्राइस अपवार्ड होनी है। तो इसी को बोलते हैं अंडरलाइंग एसेट्स। सो आई एम डूइंग द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द गोल्ड एज द वैल्यू ऑफ गोल्ड विल चेंज। अगर 80% लोगों को ये लगने लगे कि नहीं यार मार्केट की प्राइस तो डाउन ही डाउन जानी है, तो 60 दिन के बाद मेरे से कौन परचेस करेगा ये 50,000 रुपये में, जब सबको पता रहेगा, 80% लोगों को ये लग रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उस इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू, यानी कि जैसे जैसे अंडरलाइंग एसेट्स की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे मेरे इंस्ट्रूमेंट की भी वैल्यू चेंज होगी। मैंने एक इंस्ट्रूमेंट बना करके मार्केट में अगर मैं सेल करना हो तो उसकी भी वैल्यू धीरे धीरे चेंज होते चली जाएगी। सो द फर्स्ट थिंग इज दिस कि अगर फाइनेंशियल अंडरलाइंग एसेट्स की वैल्यू चेंज तो इंस्ट्रूमेंट की भी वैल्यू चेंज होगी। पहली बात ये उन्होंने बोली। दूसरी बात उन्होंने क्या बोली, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ही लो या ना के बराबर। 50,000 का गोल्ड मैंने इनिशियल इंस्ट्रूमेंट की मान लीजिए कि फेस वैल्यू रखी 10 रुपये या 100 रुपये, तो इट्स इन कंपैरिजन टू द वैल्यू ऑफ द एसेट्स इट्स वेरी नेग्लिजिबल। दूसरी बात। तीसरी बात उन्होंने क्या बोला, इट विल बी सेटल्ड इन फ्यूचर डेट। ऑफकोर्स इट विल बी सेटल्ड इन द फ्यूचर डेट। ये आज सेटल्ड नहीं होगा, ये फ्यूचर डेट में सेटल्ड होगा। ये आज सेटल्ड नहीं होगा, ये कब सेटल्ड होगा, फ्यूचर डेट में। 60 दिन के बाद की बात मैं कर रहा हूँ। तो इट विल बी सेटल्ड इन द फ्यूचर डेट। अब इट विल बी सेटल्ड इन द फ्यूचर डेट विथ 2 ऑब्जेक्टिव। 2 पर्पज से ये फ्यूचर डेट में सेटल्ड हो सकता है। पहला पर्पज तो क्या हुआ, प्रॉफिट बुकिंग, कि हमने अपना प्रॉफिट बुक किया और निकल गया। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है इसका, टू हेज, अपने आप को लॉस से प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। ये बस डेरिवेटिव अभी फ़िलहाल आपको समझना है। हम इंड एस में इसका क्या इम्प्लीकेशन है, हम इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा, वो सारी बातें हम आगे करेंगे। लेकिन ये अगर हम समझे हुए रहेंगे तो आगे हम जितनी भी बातें करने वाले हैं दैट वी कैन कोरिलेट these discussions can be correlated with that. So this is the derivative. Second one is the non-derivative. Non-derivative is the contract in which contract will be settled in the goods. Contract will be settled in the product. प्रोडक्ट में सेटल्ड होगी कॉन्ट्रैक्ट विल बी सेटल्ड इन द गुड्स। वहाँ पे सेटलमेंट होगी और प्रोडक्ट में सेटलमेंट होगी, गुड्स में सेटलमेंट होगी। वहाँ पे इंटेंशन है, गुड्स की लेन देन का इंटेंशन है, वहाँ पे सेटलमेंट का वहाँ पे इंटेंशन है, प्रोडक्ट की सेटलमेंट का। डेरिवेटिव्स में इंटेंशन था ही नहीं। हमें फॉर एग्जांपल अगर आप प्योरली इसे आप समझें एबीसी लिमिटेड की इक्विटी, हम ना एबीसी लिमिटेड की इक्विटी शेयर होल्डर, हम इक्विटी शेयर होल्डर नहीं है, सामने वाला बंदा भी इक्विटी शेयर होल्डर नहीं है एबीसी लिमिटेड का, लेकिन हम दोनों ने बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि एबीसी लिमिटेड की इक्विटी शेयर आज से 60 दिन के बाद मैं आपको 50 रुपये में दूंगा। अब वो सामने वाला बंदा यदि सोचेगा कि आज से 60 दिन के बाद नहीं, उसकी प्राइस तो 70 रुपये होगी, तो 70 रुपये होगी तो दो तरह के लोग हैं मार्केट में। मैं ये सोच रहा हूँ कि इक्विटी शेयर 50 रुपये तक ही जाएगी, मैक्सिमम 50 रुपये तक जाएगी आज से 60 दिन के बाद। सामने वाला बंदा ये सोच रहा है कि वो 70 रुपये की जाएगी। तो यहाँ पे मेरा कोई इंटेंशन एबीसी लिमिटेड का इक्विटी शेयर का लेन देन करना नहीं है, यानी कि प्रोडक्ट इस एसेट्स का लेन देन करना नहीं है। हमारा इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हम क्या करें, प्रॉफिट बुक कर लेंगे। सो इंटेंशन बेस्ड है। सो डेरिवेटिव इंटेंशन क्या है कि सेटलमेंट with the delivery of no intention with the settlement with the delivery of assets, whereas non derivative instrument जो है उसमें intention ये है कि it will be settled with the delivery of the assets और liability, प्रोडक्ट की डिलीवरी होगी वहाँ पर। ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। जो नॉन डेरिवेटिव्स
इंस्ट्रूमेंट हैं वो अब दो तरह के हो सकते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट दो तरह के हो सकते हैं नॉन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। एक तो प्लेन इंस्ट्रूमेंट। प्लेन इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये हुआ कि वो या तो एसेट्स होगा, या तो लायबिलिटी होगा, या तो इक्विटी होगा। एसेट्स होगा या लायबिलिटी और इक्विटी होगा, प्लेन इंस्ट्रूमेंट। दूसरा है एम्बेडेड इंस्ट्रूमेंट। एम्बेडेड इंस्ट्रूमेंट, एम्बेडेड इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट है जिनमें कि लायबिलिटी का भी नेचर हो और इक्विटी का भी नेचर हो। एसेट्स की तो बात ही नहीं है। एसेट्स के पास तो हमने आपको क्या बोला था जब हम फर्स्ट सेशन ही इसके ऊपर कर रहे थे, तो हमने बोला कि एसेट्स में कोई दो लाइन आइटम नहीं है। एसेट्स इज एसेट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच क्रिएट्स एसेट्स फॉर वन पार्टी और लायबिलिटी और इक्विटी फॉर अदर, एंड लायबिलिटी और इक्विटी फॉर अदर पार्टी। तो लायबिलिटी में दो लाइन आइटम है, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी, यानी कि इक्विटी और लायबिलिटी। एसेट्स के एक ही लाइन आइटम है, एसेट्स में तो एक ही लाइन आइटम है। तो कह रहा है कि कुछ मतलब नॉन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट जो है, एक तो होंगे प्लेन इंस्ट्रूमेंट। प्लेन इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये हुआ कि या तो वो एसेट्स होगा, या लायबिलिटी होगा, या इक्विटी होगा, डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आप टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर ये डिसाइड करेंगे कि जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं वो आपके लिए, जो इंस्ट्रूमेंट आप ले रहे हैं वो आपके लिए एसेट्स है, या लायबिलिटी है, या इक्विटी है। दूसरा, उसे हम लोग बोलेंगे एम्बेडेड इंस्ट्रूमेंट। एम्बेडेड इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि आप जो इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं, चाहे जो भी इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट लायबिलिटी भी हो सकती है, और वो इंस्ट्रूमेंट, उसमें लायबिलिटी और इक्विटी दोनों के फीचर्स होते हैं। लायबिलिटी और इक्विटी बोथ फीचर्स ऑफ बोथ। इन सिंपल टर्म्स से यदि आप समझ सकते हैं तो हम कोई भी लॉ यदि इसमें ना लें, और मोस्ट सिंपल फॉर्म में यदि मैं आपको बोलूं तो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कशन किया था। सपोज़ मैं कोई बिज़नेस कर रहा हूँ, उस बिज़नेस में मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ी, मैंने वो पैसे लोन पर लिया अपने फ्रेंड से। मैंने कहा कि 5 लाख रुपए का लोन दो, हम आपको 3 साल के बाद उसे रिपे करेंगे। अब मैंने क्या कहा कि 5 लाख रुपए का लोन दो, हम 3 साल के बाद आपको रिपे करेंगे। 3 साल तक हम आपको जो भी उसके ऊपर इंटरेस्ट बनता है, वो इंटरेस्ट हम आपको 3 साल तक पे करते रहेंगे। सपोज मार्केट रेट इंटरेस्ट का है 15%, तो हमने कहा कि 15% के हिसाब से हम आपको इंटरेस्ट हर साल पे करते रहेंगे। नेक्स्ट कंडीशन इसमें ये हो सकता है कि मैंने अपने फ्रेंड को ये बोला, अब जरा समझिए कि कैसे लायबिलिटी और इक्विटी हो सकती है एक इंस्ट्रूमेंट में। मैंने अपने फ्रेंड को ये बोला कि आप मुझे 5 लाख रुपए दीजिए, हम आपको हम उसके बदले में हम आपको इंटरेस्ट जो है, वो इंटरेस्ट तो जो पे कर रहे हैं वो करेंगे। साथ ही साथ हम जो आपसे ये लोन ले रहे हैं ना 5 लाख रुपए का, इसमें 50% तो हम आपको वापस कर देंगे। 50% हम आपको वापस कर, अगर 5 लाख रुपए के बदले में मैंने उनको ये बोल दिया कि 5 लाख रुपए मैं आपको वापस कर दूंगा, तो वो मेरे लिए लायबिलिटी। मैंने बोला 5 लाख रुपए मैं आपको वापस नहीं करूंगा, उसके बदले में मैं आपको 20% की शेयर होल्डिंग दे दूंगा, अपने कंपनी में शेयर दे दूंगा 20% का, तो वो मेरे लिए इक्विटी। अब मैं क्या कह रहा हूँ, 5 लाख रुपये में से 50% तो मैं आपको वापस कर दूंगा, और 50% की शेयर होल्डिंग दे दूंगा मैं अपनी कंपनी में। अब जो इंस्ट्रूमेंट में साइन कर रहा हूँ, उस इंस्ट्रूमेंट में मैंने क्या कहा कि 50% तो मैं आपको पे कर दूंगा, 50% की मैं आपको अपने कंपनी में शेयर दे दूंगा, यानी कि 10% की मैं शेयर दे दूंगा आपको अपनी कंपनी में। ये जो इंस्ट्रूमेंट में साइन कर रहा हूँ, इस इंस्ट्रूमेंट में लायबिलिटी और इक्विटी दोनों है। अब जरा इसे यूँ समझिए आप मार्केट के सेंस में। फॉर एग्जाम्पल, कन्वर्जेबल डिवेंचर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल डिवेंचर। ये जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर या रिडीमेबल डिवेंचर इशू करते हैं, ये वैसे कंपोनेंट है जिसमें कि लायबिलिटी भी होती है और उसमें इक्विटी का भी कंपोनेंट होता है। एक्चुअली ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम आगे चलेंगे इंडियस में, तो लायबिलिटी की जो मेज़रमेंट होगी और लायबिलिटी की जो प्रेजेंटेशन होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में, तो लायबिलिटी की प्रेजेंटेशन और मेज़रमेंट थोड़ा डिफरेंट होगा, इक्विटी की मेज़रमेंट और प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। तो अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें लायबिलिटी और इक्विटी दोनों के ही फीचर्स हैं अवेलेबल, तो हमें पहले उसे ब्रेक करना पड़ेगा कि उस इंस्ट्रूमेंट में कितना पार्ट लायबिलिटी है और कितना पार्ट इक्विटी है। हम कैसे इसे अलग अलग करेंगे, ये अलग बात है, ये हम आगे देखेंगे कि हम
हम जब मेज़रमेंट करने के टाइम पर जब हम इसकी अकाउंटिंग करेंगे तो हम वहाँ पर इस बात को डिस्कस करेंगे कि हमें एम्बेडेड इंस्ट्रूमेंट में से कैसे अलग अलग करना है लायबिलिटी पोर्शन को और कैसे अलग करना है इक्विटी पोर्शन को। ये दोनों बातें हम अलग अलग करेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि देयर इज़ ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ कॉल्ड द एम्बेडेड इंस्ट्रूमेंट, और एम्बेडेड इंस्ट्रूमेंट में दोनों के फीचर होंगे, लायबिलिटी के भी फीचर होंगे और इक्विटी के भी फीचर होंगे। तो इस तरह से इंस्ट्रूमेंट को देखने का ये दूसरा नज़रिया है। तो इंस्ट्रूमेंट में हमने डेरिवेटिव, नॉन डेरिवेटिव में दो पार्ट, एक प्लेन और दूसरा एम्बेडेड इंस्ट्रूमेंट, इसके बारे में हमने चर्चा की। देखिए, यदि मैं आपको बोलूं कि फाइनेंशियल स्टेट में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के जो इंड एस हैं, इसमें समझने लायक जो चीज़ें, 4-5 चीज़ें समझने लायक हैं, वो अगर हमने समझ लिया तो फिर क्या कहते हैं कि बाकी चीज़ें फिर लिटरेचर हैं और अकाउंटिंग है, उसे समझने में अपने को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो टेक्निकलिटीज़ हम ये कर ही इसलिए रहे हैं कि उस लिटरेचर और अकाउंटिंग को समझने में अपने को कोई तकलीफ़ ना हो। तो पहले पार्ट में हमने किया था लायबिलिटी, इक्विटी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के कंपोनेंट। दूसरे पार्ट में हमने किया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के कंपोनेंट ऑन द बेसिस ऑफ द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के कंपोनेंट ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर फाइनेंशियल, क्योंकि जितनी भी अकाउंटिंग एंट्री हम करने जा रहे हैं या जितने भी मेजरमेंट हम करेंगे, इंड एस में जितनी रिकग्नाइजेशन होगी वो नेचर के बेसिस पर होगी। वो फाइनेंशियल एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी तो जो है सो है, लेकिन वो एक्चुअली नेचर के बेसिस पर होगी। हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि वो डेरिवेटिव है, नॉन डेरिवेटिव है, और इसकी तो सबसे पहले ज़रूरत तभी आ जाएगी जब हम फाइनेंशियल एसेट्स की क्या डेफिनेशन दी गई है इंड एस में, उसे जब हम डिफाइन करेंगे तो हमें उसी में इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी। तो आई होप कि ये भी आपके काम आएगा। हम जो आगे डिस्कशन करेंगे उस आगे के डिस्कशन के लिए ये काम आएगा, और मैं समझता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी इन केस यदि आपकी समझ में कोई परेशानी हो, और इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ द डाउट रिलेटिंग टू एनीथिंग, ये जो भी हमने आपके साथ डिस्कस किया ये लॉजिकल डिस्कशन हमने सिर्फ किया। इंड एएस जब हम पढ़ेंगे तो इस लॉजिक को जहाँ जहाँ हमें जिस एक्सटेंट तक मॉडिफाई करना होगा हम इसे मॉडिफाई करेंगे। अपने लॉजिक को मॉडिफाई करना इंड एएस के बेसिस पर वो ज़्यादा इजी है रैदर देन कि पहले हम इंड एएस पढ़ लें। पहले हम अपने लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट कर लें, उसके बाद इंड एएस पर जाए, और फिर अपने को जहाँ जहाँ जिस जिस जगह पर अपने लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग में जो जो मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, जो जो कार्व आउट करना पड़ेगा, वो कार्व आउट हम लोग करेंगे। इन चीज़ों के साथ आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे विद द कंटिन्यूशन ऑफ दिस वीडियो। वी विल मीट with you guys very soon. So till then, bye, take care.